ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ 49th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 124th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਵਚ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ ਐਂਡ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ ਐਂਡ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ become maximum goal scorer of football. He scored 760 goals. 760 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਓਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। RBI ਦੁਆਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹੰਤੀ MD ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। LIC ਦੇ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹੰਤੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ MR ਕੁਮਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ LIC ਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਸ 4th ਇਨ ਦ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲੋਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਆਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, WHO ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। 2691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 6 ਲੱਖ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼
यूपी ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅ 3 days ਪੋਰਟਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟਸ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ। राज्य सभा MP ने ये गुजरात तो ही राज्य सभा MP ने। अ ग्रैंड मेमोरियल बिल्ट फॉर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता के लिए एक ग्रैंड मेमोरियल बनाया गया मैरीन बीच चेन्नई के नज़दीक, जिसनों अनवील किया जाएगा चीफ मिनिस्टर E.K. पालानास्वामी, चीफ मिनिस्टर E.K. पालानास्वामी द्वारा अचीव या अनवील किया जाएगा। ठीक है जी, आप पुरानी न्यूज़ डिस्कस कर लिया ने। कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच एक्सरसाइजिज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइजिज दे विच फर्स्ट एक्सरसाइज अज डिस्कस कर रहे हैं यूके दे बारे। यूके दे नाल इंडिया 3 एक्सरसाइजिज कंडक्ट करता है, तीनों इंपोर्टेंट ने। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर एक्सरसाइज, कोंकण एक्सरसाइज और इंद्रधनुष एक्सरसाइज है इंडिया यूके दे नाल कंडक्ट करता है। ठीक है जी, यूनाइटेड किंगडम के नाल अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया परफॉर्म करता है। इसके अलावा नेपाल के नाल सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया नेपाल के नाल कंडक्ट करता है। मलेशिया के नाल अगर गल करते हैं तो हरीमऊ शक्ति। हुण तुसीं कमेंट बॉक्स के आंसर देना है कि आप डिस्कस कर चुके हैं। एक तो शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है जी, शक्ति एक्सरसाइज किहड़ी कंट्री के नाल, हरीमऊ शक्ति मलेशिया के नाल है। ठीक है, इसी तरीके नाल जिन्हां दे नाम के पिछे शक्ति आंदा है। ठीक है, एक्सरसाइजिज ने डिफरेंट एक्सरसाइजिज आप डिस्कस कर चुके हैं जिन्हां दे नाम के पिछे शक्ति आंदा है। ठीक है, पर वो अलग अलग एक्सरसाइजिज ने। फॉर एग्जाम्पल हरीमऊ शक्ति हो गया अकेली। ठीक है, इस तरीके की एक्सरसाइज किहड़ी कंट्री नाल है और उन्हों का नाम की है, आप डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे हुण। ठीक है जी, रिवीजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवाइज करते रहा करो। इस करके तुसीं दसोगे कमेंट बॉक्स के कि किहड़ी एक्सरसाइज किस कंट्री नाल परफॉर्म की जाती। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। नैशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो यह कल के दिन, कल ऑब्जर्व किया गया 24 जनवरी को नैशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे नैशनल गर्ल चाइल्ड डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा 21 तो लैके 26 जनवरी याद रखांगे नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी ऑब्जर्व किया गया। नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 21 तो लैके 26 को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर गल करते इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्तूबर, नैशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इसी के नाल रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो नैशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नैशनल गर्ल चाइल्ड वीक 21 तो 26 जनवरी। इसी के नाल एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इंटरलिंक करते हैं कि सृष्टि गोस्वामी ने जिहड़े एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनाए गए उत्तराखंड के टू ऑनर नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। नैशनल गर्ल चाइल्ड डे नूं ऑनर करने के लिए उत्तराखंड स्टेट दे वैसे चीफ मिनिस्टर कौन ने? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने, और एक दिन के लिए जिहड़े चीफ मिनिस्टर बनाए गए और गर्ल बनाई गई सृष्टि गोस्वामी। ठीक है जी, इसी तरीके नाल सोनू याद होगा जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया गया सी तो ब्रिटेन हाई कमिश्नर फ्रॉम इंडिया अपॉइंट किए गए सी एक दिन के लिए चैतन्य वेंकटेश्वरन नाम सी। इसी तरीके नाल फिनलैंड कंट्री से डिस्कस किया सी आपां ने आवा मुर्तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी एक दिन के लिए। ठीक है, उसी तरीके का सेम इनिशिएटिव इंडिया के विच उत्तराखंड के बनाए गए एक दिन के लिए। ठीक है जी, 24 जनवरी को ही यूपी का भी फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया गया, 71st फॉर्मेशन डे। यूपी का 71st फॉर्मेशन डे 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया।
बेसिकली अगर यूपी की गल करते हैं, यूपी के बारे हल्का डिस्कस कर लेने कि यूपी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी 24 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ईयर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं आई थिंक 9 नवंबर है डेट है जी, जिस दे विच किस नूं अलग किया गया सी, उत्तराखंड नूं अलग किया गया सी यूपी नालों। यूपी दे विच करंटली 75 डिस्ट्रिक्ट्स ने, लोक सभा सीट 403 ने, राज्य सभा सीट्स की गल करते हैं तो 100 लोक सभा सीट्स नहीं आई थिंक 403 असैंबली की सीट्स ने। लैजिसलेटिव असैंबली है जी, लैजिसलेटिव असैंबली की सीट्स 403 ने, लैजिसलेटिव काउंसल की सीट्स 100 ने। इतने लैजिसलेटिव असैंबली और काउंसिल दोनों है और 100 लैजिसलेटिव काउंसिल की सीट्स ने। सब तो ज़्यादा लैजिसलेटिव असैंबली की सीट्स यूपी के विच ने। इस तो इलावा अगर गल करते हैं लोक सभा सीट भी सब तो ज़्यादा ने, 80 सीट्स ने लोक सभा दियाँ और राज्य सभा दियाँ 31 सीट्स ने यूपी के विच। इस तो इलावा यूपी तो स्टैटिक होर भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉपूलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पर आता है यूपी, एरिया वाइज चौथे नंबर पर आता है यूपी। ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर हर एक को पता होगा योगी आदित्यनाथ ने। गवर्नर इंपोर्टेंट रहेंगे आनंदीबेन पटेल, यूपी के गवर्नर ने आनंदीबेन पटेल और इन्होंने लवे MP का भी चार्ज है। ठीक है जी। इस तो इलावा सुकन्या समृद्धि योजना स्किप हो गई थी अपनी कि सुकन्या समृद्धि योजना है जो इसने भी 6 साल पूरे किए ने। 22 जनवरी नूं 6 साल पूरे किए ने सुकन्या समृद्धि योजना ने। ठीक है जी। 2015 के लॉन्च की गई सी। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बीन एडजस्ड एज बेस्ट गवर्नड कंपनी एट 20th ICSI नेशनल अवार्ड्स इन लार्ज कैटेगरी। ICSI सब तो पहले ICSI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा कंपनी जिसने अवार्ड दिते हैं तो वह है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका हैडकुआटर कित्थे है, ये चीज़ां पता होनी जरूरी ने। ठीक है जी। डिस्कस करते हैं तो पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेना हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर इंडिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर दे हॉर्लिक्स ने और डाबर इंडिया के च्यवनप्राश ने दोनों नूं अक्षय कुमार नूं ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। दोनों के ब्रांड एंबेसडर अक्षय कुमार बनाए गए सी। मिल्क की कैटेगरी दे विच एक लिस्ट जारी की गई सी जिस दे विच टॉप किया सी अमूल इंडिया कंपनी ने। ठीक है जी। इंडिया के विचों मिल्क प्रोडक्शन की कैटेगरी के विच एक लिस्ट जारी की गई सी बेस्ट क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स की, जिस दे विचों इंडिया के विचों टॉप किया गया सी अमूल कंपनी ने। ठीक है। ओवरऑल 8वें नंबर पर रही सी, याद रखांगे। तो न्यूज़ डिस्कस करते हैं तो ICSI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रटरीज ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रटरीज ऑफ इंडिया इस दे अवार्ड्स दे विच बेस्ट गवर्नड कंपनी किहड़ी रही है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड इंपीरियल तंबाकू कंपनी। ITC इंपीरियल तंबाकू कंपनी कोलकाता दे विच, कोलकाता वेस्ट बंगाल दे विच हैडकुआटर है और संजीव पुरी इज दे हेड ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज signed a MOU with which of the following for research and development, teaching and training of the area of development of highway infrastructure। कि बेसिकली ਜਿਹੜੇ हाईवेज ने, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसनूं किस तरीके नाल डेवलप किया जाए इसकी टीचिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। इस तो इलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया। पहले इसरो ने हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए DRDO के नाल एग्रीमेंट साइन किया सी। हुण इन्हां ने एक एग्रीमेंट रुड़की के नाल IIT रुड़की के नाल साइन किया है टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए तो नितिन गडकरी लवे है, इंपॉर्टेंट रहेगी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इस तो इलावा MSME मिनिस्टर भी ने नितिन गडकरी और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP। ठीक है जी। IIT रुड़की द्वारा ही अगर आप गल करते हैं प्राण वायु वेंटिलेटर बनाया गया सी, इंपॉर्टेंट रहेगा प्राण वायु वेंटिलेटर IIT रुड़की द्वारा। और यूनिसेवियर एक डिसइनफेक्टेंट डिवाइस भी IIT रुड़की द्वारा ही बनाया गया सी। IIT मद्रास द्वारा मेडिकैब पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया सी। IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट
वार्ड बोट रोबोट डेवलप किया गया सी। IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन याद रखांगे। IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट IIT दिल्ली द्वारा डेवलप की गई। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉ ऑफ एमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स। द लॉ ऑफ एमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स, इस बुक के राइटर कौन ने? तो इस बुक के राइटर ने बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और खागेश गौतम। डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ते प्रोफैसर खागेश गौतम, इन्हां दोनों द्वारा मिल के एक बुक लिखी गई। बुक लॉ ऑफ एमरजेंसी पावर्स के उत्ते है, रिलीज़ की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमाणा द्वारा। इस बुक नूं सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमाणा द्वारा रिलीज़ किया गया। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट किए गए हैं चंदी प्रसाद मोहंती। चंदी प्रसाद मोहंती नूं इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया, याद रखेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके नुपुर कुलश्रेष्ठा से जिहड़े ये ICG के इंडियन कोस्ट गार्ड के फर्स्ट वूमेन इंस्पैक्टर जनरल सी, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल, फर्स्ट वूमेन डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल कौन बने सी ICG के? तो नुपुर कुलश्रेष्ठा। ठीक है जी, बाकी ऑप्शनस न्यूज़ के विच ने डिटेल डिस्कस करते हैं। निखिल श्रीवास्तव के रिलेटेड जी न्यूज़ है ये वेरी 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 इंपोर्टेंट कहांगे, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। निखिल श्रीवास्तव एक यंग इंडियन मैथमेटिशियन ने जो कि प्रोफैसर ने कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी के विच, इन्हों ने एक अवार्ड दिता 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज़। ठीक है, यह अवार्ड 2017 के विच शुरू किया गया सी, 2021 का अवार्ड दिता। इन्होंने किन्ना दे नाल जितया? 3 लोगों को यह अवार्ड दिता गया, निखिल श्रीवास्तव, दूसरा नाम एडम मार्कस और तीसरा डैनियल एलन स्पीलमैन। अपने लिए इंडियन नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीनों प्रोफैसर्स ने कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी के विच, निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस, डैनियल एलन स्पीलमैन। किस दे लई? फॉर सॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस ऑफ द कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम एंड ऑन रामानुजन ग्राफ्स। बेसिकली मैथमेटिशियंस दे विच कैलिसन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुजन ग्राफ्स के उत्ते जिहड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन सीगे उन्होंने सॉल्व किया इन्होंने, इस करके अवार्ड दिता गया जिसकी प्राइज मनी है $1 लाख US। प्राइज मनी काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी, $1 लाख US इस दे विच दिते गए। इस तो इलावा नरेंद्र चहल एक सिंगर सीगे, नरेंद्र चहल जिहड़े कि अपने रिलीजीयस सॉन्ग्स के करके जाने जाते सी, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिडनाइट सिंगर, इन्हों मिडनाइट सिंगर कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता सी? क्योंकि बेसिकली जो जागरण वगैरह कहांगे उन्होंने परफॉर्म करते सी और इन्हों के फेमस सॉन्ग्स ने बेसिकली हनुमान चालीसा इन्हों द्वारा काफ़ी फेमस है। इस तो इलावा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, यह भजन इन्हों का काफ़ी फेमस है। इस तरीके डिफरेंट भजन से इन्हों के रिलीजीयस सॉन्ग से और इन्हों की डैथ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट किया गया सी, तो इस करके इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, नरेंद्र चहल। इस तो इलावा मिहिर दलाल द्वारा एक बुक के लिए अवार्ड दिता गया। इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इस बुक के लिए इन्हों की पहली बुक है, डेब्यू बुक है। इस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ मिहिर दलाल ने दिते है 15 लाख रुपए की प्राइज़ मनी के नाल। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज US सैक्रटरी ऑफ डिफेंस। US सैक्रटरी ऑफ डिफेंस कौन अपॉइंट किए गए हैं? बेसिकली यह न्यूज़ आप पहले डिस्कस की हुई है। सोनी याद होएगा जदों दे
अगर कहांगे कि इलैक्शन के रिजल्ट अनाउंस होए ने 3 नवंबर कहांगे या उस तो कुछ टाइम बाद की गल करते हैं, तो जिहड़े अनाउंस किए गए ने डिफरेंट नाम USA के प्रेजिडेंट जो बिडन द्वारा डिफरेंट परसनस नॉमीनेट किया गया सी, एक भी परसन उस ऐसा नहीं है जिसनों अपॉइंट कर दिता गया सी, ठीक है, क्योंकि अजे खुद जो प्रेजिडेंट बन गए उस तो बाद ही उन्होंने अपॉइंट किया जाएगा। तो बेसिकली उत्थे जी सैनेट है या कहांगे उत्थे जी काउंसल है वो उसनों अप्रूवल दिंदी है, उस तो बाद अपॉइंट किए जाते हैं। तो नाम अनाउंस किए गए सी, हुण उन्होंने अप्रूवल आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम आप इस करके डिस्कस कर ले सी ताकि अपनी रिवीजन हो जाएगी, डबल रिवीजन। हुण तो USA के सैक्रटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन आप इन्हां दा नाम डिस्कस किया सी कि यह अगर बनाए जाते हैं तो कौन हो जाएंगे, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन हो जाएंगे, ठीक है। तो हुणे बना दिते गए ने USA के सैक्रटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ने, और ये पोस्ट भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। आप कहांगे जिस तरीके नाल इंडिया दे विच डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट है उसी तरीके नाल USA दे विच सैक्रटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट में। सैक्रटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो कि इत्थे दी जिहड़ी डिफेंस होंदी है इसनूं पेंटागन कहंदे ने, पेंटागन नूं लीड करनगे, ठीक है जी। इसी तरीके नाल कैथलीन हिक्स का नाम डिप्यूटी डिफेंस सैक्रटरी दे लई, डिप्यूटी डिफेंस सैक्रटरी दे लई नामित किया गया सी, अप्रूवल आनी बाकी है। नैंसी पेलोसी ऑलरेडी स्पीकर सीगे US हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स दे, इन्हां नूं री इलैक्ट किया गया सी, ठीक है। यदा फाइनल इन्हां दी अपॉइंटमेंट ही है कि नैंसी पेलोसी USA दी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव दे स्पीकर सीगे, इन्हां नूं री इलैक्ट किया गया और यह ओनली वूमेन स्पीकर ने US हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स दे याद रखेंगे। वनीता गुप्ता नूं एसोसीएट अटॉर्नी जनरल दे लई नामित किया गया सी, और मैरी गारलैंड नूं अटॉर्नी जनरल दे लई नामित किया गया सी। अटॉर्नी जनरल दे लई मैरी गारलैंड और एसोसीएट अटॉर्नी जनरल दे लई वनीता गुप्ता। नेक्स्ट है who has been appointed as new chairperson of Broadcasting Content Complaints Council। Broadcasting Content Complaints Council दे Broadcasting Content Complaints Council दे नवे चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए ने, तो अपॉइंट किए गए ने गीता मित्तल जो कि चीफ जस्टिस रह चुके ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दे, या कहांगे फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस रह चुके ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दे। इन्हां नूं अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ठीक है। कमेंट बॉक्स के आंसर देना। हुण जिहड़े नवे चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए ने, आपां ने काफ़ी बार उन्हां दा नाम डिस्कस किया है कि नवे चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दे अपॉइंट किए गए ने उन्हां दा की नाम है, ठीक है। इस तो इलावा प्रेशा खेमानी बारे याद होएगा आप डिस्कस किया सी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सी फ्लैग्स 150 कंट्रीज़ के फ्लैग्स सिर्फ 4 मिनट 17 सैकेंड के इन्होंने आंसर दिते सीगे, फ्लैग्स कैपिटल और करंसीज। सतीश व्यास तानसेन अवार्ड दिता गया सी MP द्वारा तानसेन अवार्ड पंडित सतीश व्यास नूं। हेमंत कुमार पांडे DRDO दे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया सी हेमंत कुमार पांडे, ठीक है जी। तो श्याम श्रीनिवासन इन्हां रिलेटेड न्यूज़ है कि श्याम श्रीनिवासन जो कि MD एंड CEO ने फेडरल बैंक दे MD एंड CEO ने इन्हां नूं अवार्ड दिता गया बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है जी। एज पर द ज्यूरी जिन्हों द्वारा डिसाइड किया गया, नाम इंपोर्टेंट रहेगा, ज्यूरी चेयर्ड बाय फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा की अगवाही हेठ ज्यूरी दे विच बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड MD एंड CEO फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन नूं दिता। गीता मित्तल रिलेटेड न्यूज़ आप डिस्कस कर ली है, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 है जी, यह किस द्वारा जारी की जाती है? तो इसनूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। बेसिकली इस अनाउंस किया जाता है कि किस तरीके के रिस्क अगर आ रहे हैं तो किस तरीके के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट के रिलेटेड इस अनाउंस किया जाता है। इस तो इलावा न्यूट्रीशन के रिलेटेड, मैल न्यूट्रीशन के रिलेटेड रिस्क अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो डिटेल अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगी, अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा कि इस रिपोर्ट को कौन जारी कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग द्वारा ਜਿਹੜੇ रैंकिंग्स जारी की जाते हैं वो इंपोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जिन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स काफ़ी इंपोर्टेंट बनता है। रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, ये भी नीति आयोग द्वारा। ठीक है, करनाटका ने टॉप किया। ठीक है, इस तरीके डायरैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी रिपोर्ट जारी करती है, किहड़ा इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, इस तो इलावा आरबीआई द्वारा, अच्छा मैं नहीं दसांगा, तुसीं दसोगे कि आरबीआई द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया सी कि एक नवा इंडेक्स जारी किया जाएगा जिसका बेस ईयर आप दस्सिया सी कि 2018 लिता गया, बेस ईयर 2018 लिता गया है। उस इंडेक्स का की नाम सी? ठीक है, मार्च के विच रिपोर्ट जारी की जाएगी, उदों आप डिस्कस भी करांगे। तो उस रिपोर्ट का नाम की सी? तो इस तो इलावा ऑप्शंस की गल करते हैं। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलोगनी स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है, 1971 के बनाई गई सी। ठीक है, इस तो इलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हर साल देवोस के होंदी है। 50वीं मीटिंग जो देवोस के ऑर्गेनाइज की गई सी, जिस दे विच क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी दीपिका पादुकोण। ठीक है, पर जी 51st मीटिंग है एक कोविड-19 के कारण पहले अनाउंस की गई कि लुसेरने स्विट्जरलैंड के ऑर्गेनाइज की जाएगी, लेकिन हुण इसनूं अनाउंस किया गया कि मई या जून के इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिंगापुर के इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे कि 51st मीटिंग सिंगापुर के ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन के रिलेटेड आप डिस्कस कई बार किया हुआ है। यूनीसैफ का हैडकुआटर कितने है? न्यूयॉर्क के है। HH4 हैड ने। WHO की अगर आप गल करते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है। टेड्रोस एडानोम हैड ने। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC के हैडकुआटर है। IMF का हैडकुआटर भी वाशिंगटन DC के है। इसके हैड वर्ल्ड बैंक के हैड की अगर आप गल करते हैं तो डेविड मलपास हैड ने। IMF की गल करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इस दे हैड ने। नेक्स्ट है DRDO द्वारा सक्सैसफुली टेस्ट किया गया इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉ फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सॉ? ये जी न्यूज़ है ये काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। इस कई तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब तो पहले तो DRDO के फैक्ट ही काफ़ी इंपोर्टेंट बननगे। DRDO 1 जनवरी 1958 में बनाई गई सी। न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। G सतीश रेड्डी इसके हैड ने। ठीक है जी, इस तो इलावा सो DRDO ने डेवलप की है, इंडिजीनियसली डेवलप की है। तो यह की चीज़ है? यह स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैपन है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैपन है जिसनों टेस्ट किया गया ओडिशा कोस्ट तो। ओडिशा कोस्ट तो इसनों टेस्ट किया गया। ठीक है, तो इसनों टेस्ट किस चीज़ तो किया गया वो इंपोर्टेंट बनेगा। पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो DRDO ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैपन ओडिशा कोस्ट तो टेस्ट किया फ्रॉम इंडियन हॉक MK132 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कि बेसिकली कि इंडियन हॉक एक हैलीकॉप्टर की तरह कहांगे, एक एयरक्राफ्ट है इंडियन हॉक जो कि HAL का है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैक्ट इंपोर्टेंट बन जाएंगे। तो बेंगलुरु के हैडकुआटर है, ये 1940 के बनाया गया सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और R माधवन इसके हैड ने। ठीक है जी, अच्छा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो ही सूँ याद आता होगा रिसेंटली तेजस की डील भी साइन हुई है। तेजस 83 तेजस की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाल ही साइन की गई है, याद रखेंगे। ठीक है जी, अच्छा तो DRDO की एक लैबोरेटरी है DRDO रिसर्च सेंटर इमारत।
DRDO ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ RCI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇਮਾਰਤ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਐਂਟੀ 에ਅਰਫੀਲਡ ਵੈਪਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ITBP ਜੋ ਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ SS ਦੇਸਵਾਲ ITBP ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ITBP ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ITBP ਨੇ, ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। नेक्स्ट है, who has laid the foundation stone for setting up an aquatic quarantine facility at aquatic animal quarantine center पदपई near चेन्नई तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਇਹ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। एक्वाटिक आया था फिशरीज मंत्रालय है जो फिशरीज मिनिस्ट्री जे गिरिराज सिंह लवे है बेगूसराय बिहार तो। एनीमल हसबेंडरी मिनिस्ट्री है इसी दे नाल फिशरीज मिनिस्ट्री है ना लवे बेगूसराय बिहार तो। लोक सभा MP ने इन्हां द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कहांगे फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस दे रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करांगे, पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहले रवि शंकर प्रसाद इलैक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने, पटना बिहार तो लोक सभा MP। ठीक है, तो इन्हां दी मिनिस्ट्री द्वारा रैपिड असैसमेंट सिस्टम, एक रैपिड असैसमेंट सिस्टम फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी RAS, रैपिड असैसमेंट सिस्टम इसने बनाया गया है नैशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन IT मिनिस्ट्री के अंडर। किस दे लई? जिन्होंने वैक्सीनेट किया गया उन्होंने फीडबैक लैन दे लई, जिन्होंने वैक्सीनेट किया गया उन्होंने फीडबैक लैन दे लई इस पोर्टल नू या इस सिस्टम नू बनाया गया। अर्जुन मुंडा, दो इंपोर्टेंट न्यूज़ कि अर्जुन मुंडा द्वारा रीस्टार्ट किया गया आदि महोत्सव। सोनू याद होगा ट्राइफेड इनिशिएटिव है जो ट्राइफेड इनिशिएटिव के अंडर ट्राइबल कल्चर नू, ट्राइबल क्राफ्ट्स नू, आर्ट्स नू प्रमोट करने के लिए आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कोविड-19 के कारण इसनूं रोक लिया गया सी, इसनूं दोबारा रीस्टार्ट किया गया दिल्ली दे विच। किन्हां द्वारा? अर्जुन मुंडा द्वारा। ठीक है जी, इन्हां नूं ही रिसेंटली याद रखांगे अवार्ड भी दिता गया ई-गवर्नेंस के लिए, स्कॉच अवार्ड। इस तो इलावा इन्हां ने लॉन्च किया एक माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति, एक माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, एक ट्राइबल म्यूजियम तो एक ट्रेनिंग मैनुअल श्रम साथी कित्थे लॉन्च किए ने? तो गोवा दे विच ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किए ने। खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशांक, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। ठीक है, इन्हां द्वारा नवी बिल्डिंग्स नूं इनॉग्रेट किया गया केंद्रीय विद्यालय बेतीहा बिहार दे विच और कोरबा छत्तीसगढ़ दे विच दो बिल्डिंग्स नूं इनॉग्रेट किया वर्चुअल फॉर्म दे विच एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने। प्रहलाद जोशी द्वारा अवार्ड दिते गए ने, कोल मिनिस्टर अवार्ड किन्हां नूं दिता गया? नॉर्थन कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड ते वैसटर्न कोलफील्ड, 3 कोलफील्ड्स नूं अवार्ड दिता गया। डायरैक्टली पूछा जा सकता है किहड़े नूं दिता गया, या क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि किहड़े नूं नहीं दिता गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, वैसटर्न। चौथा ऑप्शन साउदर्न हो सकता है, ईस्टर्न हो सकता है, तैयार रखेंगे। ठीक है जी, इसी दे नाल प्रोजैक्ट पैशन लॉन्च किया गया सी प्रहलाद जोशी द्वारा। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, कोल मिनिस्ट्री इन्हां लवे, इस तो इलावा माइनस मिनिस्ट्री भी है। और धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने, धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने प्रहलाद जोशी। पीयूष गोयल की अगर आप गल करते तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का, लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन यानी कि 3.5 किलोमीटर की ट्रेन शुरू की गई है वासुकी, जिसका नाम रखा गया है वासुकी। ठीक है, अनाउंस पहले की जा चुकी सी, फाइनली इसमें शुरू किया गया। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्यूर 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम विच कंट्री। कि इंडिया MiG-29 21 MiG-29 ਤੇ 12 सुकोई एयरक्राफ्ट खरीद रहा है किहड़ी कंट्री तो यह रशिया तो, किहड़ी कंट्री तो खरीदे जा रहे हैं तो रशिया तो यह एयरक्राफ्ट नूं खरीदिया जाएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा किहड़ी कंट्री तो खरीद रहा है तो रशिया तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि वैसा रफाल इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रांस तो खरीदे गए हैं। ठीक है, मीटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल किहड़ी कंट्री तो फ्रांस तो खरीदी गई है। अपाचे चिनूक हैलीकॉप्टर्स किहड़ी कंट्री तो खरीदे गए हैं, USA तो खरीदे गए हैं। ठीक है जी, S-400 मिसाइल रशिया तो खरीदी गई है। ठीक है, LMG गन्स इजराइल तो खरीदियां गई ने। इस तरीके के क्वेश्चन डायरैक्ट वन लाइनर के पूछ ले जाते हैं, याद रखांगे कि MiG-29 और सुकोई एयरक्राफ्ट कितों खरीदे जा रहे हैं तो रशिया तो। ठीक है जी, इस तो इलावा यूएई फर्स्ट अरेबिक कंट्री बनी है जिसने रशिया की स्पुतनिक 5 COVID-19 वैक्सीन नूं अप्रूवल दी है। फर्स्ट अरब कंट्री यूएई बनी है, आबू धाबी कैपिटल है, दिरहम करंसी चलती है। ठीक है जी, हंगरी इसी तरीके नाल हंगरी फर्स्ट यूरोपियन यूनीयन की कंट्री बनी है। ਆਪਾਂ डिस्कस किया कि यूरोपियन यूनीयन के 27 मैंबर कंट्रीज़ ने, पहले 28 होंदियां सी, ब्रिटेन ने एग्जिट किया। यूरोपियन यूनीयन दे हैड की अगर आप गल करते हैं उर्सुला वॉर दे लियान ने, इंपॉर्टेंट रहेगा, और ब्रुसल्स बेल्जियम के इसका हैडकुआटर। तो यूरोपियन यूनीयन की पहली कंट्री हंगरी बनी है जिसने रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन नूं अप्रूवल दी है। ठीक है जी, स्पुतनिक 5 सॉरी हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, करंसी फॉरेन। इसी तरीके नाल इंडिया ने जिहड़ी आपां गल शुरू च डिस्कस की सी कि इंडिया ने कोविडशील्ड वैक्सीन प्रोवाइड की है सियाचिल्स और मॉरिशस नूं भी। ठीक है, नेपाल नूं इंडिया प्रोवाइड कर चुका है, बांग्लादेश नूं प्रोवाइड कर चुका है, भूटान नूं प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके नाल सियाचिल्स और मॉरिशस नूं भी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर कोविडशील्ड वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, कैपिटल करंसीज इंपोर्टेंट रहनगियां, याद रखांगे। नेक्स्ट है इंडिया दा लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किहड़ी स्टेट दे विच बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंडिया दा लार्जेस्ट गुजरात दे विच बनाया जाएगा। ठीक है जी, इसी दे नाल बाकी स्टेट्स दे रिलेटेड न्यूज़ ने, हालांकि मंडे है इस करके न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ने, कुछ न्यूज़ आप कल भी डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले न्यूज़ डिस्कस करते हैं गुजरात की, कि गुजरात के विरलोचन नगर सनद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट दे विच बनाया जाएगा, जिस दे लई अदानी ग्रुप के नाल एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। टोटल 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसनूं बनाने के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है जी, इसी तरीके नाल गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मोधेरा सन टैंपल का टैबेल्यू बनाया जाएगा, मोधेरा सन टैंपल का रिपब्लिक डे परेड के लिए। बेसिकली रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज की जाएगी, डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट टैबेल्यूज लगाएंगे। ठीक है, अगर आप गल करते हैं वेस्ट बंगाल की, आप डिस्कस किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उत्ते लगाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके नाल हर एक स्टेट का अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, अपने लिए इंपोर्टेंट बनने जिन्होंने अवार्ड दिता जाएगा, फर्स्ट सैकेंड थर्ड 3 अवार्ड दिते जाएंगे, तो तीनों अपने लिए इंपोर्टेंट बनने और डिस्कस करेंगे आप। इस तो इलावा पंजाब का इंपोर्टेंट बनेगा, आप पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हों द्वारा फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया दालनवल देहरादून दे विच इनॉग्रेट किया गया पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। MP विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने अनाउंस किया है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर या कहांगे कि यूनिवर्सिटी
एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी भोपाल MP दे विच। विप्रो बनाएगा एक यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कित्थे भोपाल दे विच, MP भोपाल दे विच। हालांकि विप्रो दा हैडकुआटर कित्थे है, बेंगलुरु दे विच है। ये याद रखांगे, विप्रो दा हैडकुआटर कित्थे है, तो बेंगलुरु दे विच। तमिलनाडु इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसल, इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसल ऑर्गेनाइज की गई, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई चेन्नई दे विच, चेन्नई तमिलनाडु दे विच। ठीक है जी। तेलंगाना, तेलंगाना सरकार ने 8 पैथोलॉजी लैब्स नूं, 8 पैथोलॉजी लैब्स नूं शुरू किया जिन्होंने मिनी हब्स के नाम तो जानिया जा रहा है हैदराबाद दे विच, ताकि फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकन गरीब लोगों को। ठीक है जी। डायरैक्टली याद रखांगे मिनी हब्स किहड़ी सरकार ने शुरू किया है, तेलंगाना। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT हैज़ ऑर्गेनाइज्ड तोशाली, तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला, तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला केड़ी स्टेट ने, केड़ी स्टेट ने या UT ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसनों ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, नवीन पटनायक द्वारा भुवनेश्वर दे विच, भुवनेश्वर दे विच इसनों ऑर्गेनाइज किया गया। और यह एनुअल मेला है तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला। जिस तरीके नाल सूरज कुंड मेला पूछा जाता है तो हरियाणा दे विच है। ठीक है। परशुराम कुंड मेला पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। तानसेन फैसटीवल पूछा जाता है MP दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके नाल लिली फैसटीवल, डिफरेंट फैसटीवल्स और मेले इंपोर्टेंट बनते हैं, डायरैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल काइट फैसटीवल गुजरात दे विच, गुजरात के अहमदाबाद दे विच हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस करके ये इंपोर्टेंट रहते हैं, डायरैक्टली याद रखांगे तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला उड़ीसा दे विच। इस तो इलावा 2 होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। राजस्थान होम अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा जयपुर, राजस्थान की जयपुर राजस्थान पुलिस अकैडमी जो कि जयपुर दे विच है, इसनूं बेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा गया है गैस्टेड ऑफिसर्स नूं ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड दिता गया राजस्थान पुलिस अकैडमी नूं जो कि जयपुर दे विच है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अमित शाह लवे है गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। यह न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी कि लद्दाख विल बी फर्स्ट UT टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड विद टैबेल्यू ऑफ थिक्से मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री। बेसिकली कि अगर गल करना 31 अक्तूबर 2019 की, 31 अक्तूबर 2019 नूं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर नूं डिवाइड किया गया। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने 2020 की रिपब्लिक डे परेड दे विच पार्टिसिपेट किया सी टैबेल्यू दे नाल, पर लद्दाख ने नहीं किया सी। ठीक है। तो इस साल 2021 दे विच लद्दाख पहली बार टैबेल्यू दे नाल पार्टिसिपेट करेगा। टैबेल्यू किसका होएगा, तो थिक्से मोनेस्ट्री का होएगा। ठीक है। इस करके यह इसका टैबेल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। डायरैक्टली याद रखांगे लद्दाख थिक्से मोनेस्ट्री कित्थे है। ठीक है। क्योंकि थिक्से मोनेस्ट्री डायरैक्टली पूछी जाएगी कित्थे है, जिसदे विच ऑप्शंस दे विच लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड प्लस नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट दे दित्तियां जाणगियां। ठीक है। जिथे बेसिकली मोनेस्ट्रीज वगैरह पाई जांदियां ने, तो थिक्से मोनेस्ट्री कित्थे है, लद्दाख दे विच है। डायरैक्टली याद रखांगे। ठीक है जी। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।